learners. This is Sunil Vishwakarma, and today's topic is how to extract, or say how to get an individual item or say data from a data frame. यानी data frame एक object है, वो आपका 2-dimensional object होता है जिसमें rows and columns में data divide रहता है. For example, this one. ये rows हो गए और ये columns हो गए. These are the columns and these are the rows. Row एक complete record होता है. For example, roll number 101, name Rohan, Hindi, English. These are the marks in different subjects. This is a complete record. And what about column? Column is a particular field along with its data. For example, name is a column and its data are Rohan, Aruni, Adarsh, Karan and Devraj. Now, these are called columns and these are called particular data related to that column. And this horizontal way, if we read in a horizontal way, then we can say that this is a record. And if we read any data in a vertical manner, then we can say that we read data regarding particular column. For example, 61, 95, 72. These are the data related to English, column. Now, in order to extract a particular data from a data frame, let's suppose I want to extract math column along with its data 43. This is my data. Okay, I want to extract this 43 from maths column. This is an individual data. How can we extract? We can extract, let's suppose I'm going to copy this and I'm going to paste over here. Let's understand the concept. Concept says all the data, or say in any data structure, you can access an individual item or say data with the help of index number. These are the index number. If there is only one column, then there is, it's a simple way to extract from index number for this column. ना इसका एक अपना एक नाम है STU. Let's suppose STU नाम हो गया इस पूरे डेटा फ्रेम का, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ STU. जैसे आप लोग बाकी अगर हमने लिस्ट पढ़ा है तो लिस्ट में भी आप लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स का नाम. अगर मैंने ऐसे लिख दिया STU3, इट मीन्स STU का थर्ड. इससे रिलेटेड ये, अगर हमारे पास ये एक ही डेटा है और बाकी डेटा नहीं है, तो अगर ये नहीं है, अगर इस तरह का है, तो ये सिंपल है, आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही है. बट अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो उस केस में क्या? यहाँ पे तो एक कॉलम है, इसलिए हमारा ये एक ये इंडेक्स नंबर करने के लिए हमारे पास ये वो फॉर्मेट होता है इंडेक्स नंबर के लिए, ब्रैकेट्स का नाम लिखा और ब्रैकेट के अंदर क्योंकि यहाँ पे एक है. बट व्हाट अबाउट जब मोर देन वन कॉलम्स हो? तो ऐसे at this kind of situation we are going to choose multiple these brackets. We are going to use multiple brackets, one for column name and one for its index number. If there are multiple columns and each index number represent value for that column. For example, if I am going to choose English,
see the logic, and these are the index number. I am going to copy this one, and now I am going to copy English one. See, यही इंडेक्स नंबर इस इंग्लिश के लिए भी 0 है, 0 पे ये है, इसी इंग्लिश के लिए 1 पे 95 है, इसी इंग्लिश के लिए 2 पे 72 है, 3 पे 73 है, 4 पे 98 है. इट मीन्स ये इंडेक्स नंबर सभी के लिए अप्लाई होगा. 0 रोल नंबर 101, यही 0 नेम पे रोहन, यही 0 हिंदी पे 47, यही अगर 4 करें और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 4th पे इंग्लिश का 98 है. इट मीन्स यहाँ पे क्या क्या आ जा रहे हैं, एक आपका इंडेक्स नंबर आ जा रहा है और एक आपका फील्ड नेम आ जा रहा है, बिकॉज देयर आर मोर देन वन फील्ड नेम. तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस डेटा स्ट्रक्चर का डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं. उसके बाद फर्स्ट जहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर देना है वहां पे हम इंडेक्स नंबर ना देके वहां पे हम कॉलम का नाम लिखते हैं इन ब्रैकेट्स, कॉलम का नाम, लेट्स सपोज इंग्लिश. उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन कॉलम है, और क्योंकि हमें पहले कॉलम नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर. ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल में भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं हम एक्सेल में भी. एक्सेल में भी अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐसे, इंग्लिश का 98, सी यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, D6, पहले कॉलम का नाम फिर उसका इंडेक्स नंबर. दीज आर इंडेक्स नंबर्स 1 2 3 4, जिन्हें हम रो नंबर भी कहते हैं एक्सेल में, यहाँ पे हम इसका इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं. एंड दीज आर द कॉलम्स, D A B C D, दीज आर कॉलम्स, है ना. जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेल को अगर रेफरेंस करना है तो सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर फॉलोड बाय रो नंबर. अगर मैं इसकी बात करूं 43, तो पहले इसका कॉलम का नाम E, देन इसका इंडेक्स नंबर 4 E4. यहाँ पे E4 एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके बीच में अगर हम यहाँ पे पहले इस तरह का साइन बना के पहले वाले पार्ट को हम, पहला वाला पार्ट जो है F है, दिस इज माय कॉलम नेम, और जो है 5 है, दिस इज माय इंडेक्स नंबर. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या है, 4. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश का 4th ये उठा लेंगे जो कि 98 होगा. लेट्स डू दैट. ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं. ये है मेरा पूरा रिकॉर्ड. मुझे चाहिए दिस 97, ठीक है, ये 97 चाहिए मुझे, ये वाला IT का 97. तो मैं क्या करूंगा, IT का 97 के लिए सबसे पहले मेरे पास ये क्या है मेरा, ये मेरा डिक्शनरी है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, इसे मैंने पास करा दिया डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम से फिर मुझे चाहिए इंडिविजुअल आइटम. तो print as per the syntax डेटा फ्रेम नेम, ठीक है, डेटा फ्रेम नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे. डेटा फ्रेम नेम इज my marks, my MARKS, my marks. ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका, कॉलम का नाम, एंड my column name is IT. जैसे यहाँ लिखा वैसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं होगा नाम में. ये उसके बाद
इंडेक्स नंबर और से रो नंबर, हम जैसे एक्सेल में रो नंबर कहते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहेंगे। इंडेक्स नंबर गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 4। तो ये आपका 97 इंडिविजुअल आइटम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 97 आ गया इंडिविजुअल आइटम। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये इंग्लिश का 72 मिल जाए तो मैं इसके अंदर 4 पास करा दूंगा, बट कॉलम नेम क्या रहेगा मेरा फिर, इंग्लिश। चलो मैं यहीं पे करा देता हूँ। ये लिखा मैंने माई माई मार्क्स ENGLISS इंग्लिश। उसके बाद कॉलम नेम इज मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश का 72 0 1 2। सी $97 ये आ गया और 72 ये आ गया। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल आइटम्स को उठा सकते हैं। गॉट इट? ओके, एक चीज देखते हैं। ये तो आ गया हमारा ऐसा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पास करा दिया। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पूरा ना पास कराऊं और किसी और हेल्प से मैं ये पूरा प्रिंट कराऊं तो क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रिंट माई माई मार्क्स, पहला क्या है मेरा, रोल नंबर, ROLL रोल नंबर, और फर्स्ट उठाया मैंने 0th पे, ठीक है 101 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं उठाता हूं नेम का, माई मार्क्स NAME नेम, और इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, ये भी 0th पे ही है। देखिए 101 रोहन। फिर मैं हिंदी का उठाता हूं, ये क्या, माई मार्क्स HIND है हिंदी। फिर मैं उठाता हूं, ये भी 0th पे है, कंफ्यूज मत होइएगा। 0th पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 0th वाली लोकेशन पे देखो, 0 पे 101 है, 0 पे ही रोहन है, 0 पे ही 47 है, ठीक है, ये 0th पे ही चल रहा है। यानी कि रोल नंबर के 0th इंडेक्स पे ये है, नेम के 0th इंडेक्स पे रोहन है, हिंदी के 0th इंडेक्स पे 47 है। मुझे अगर नेक्स्ट चाहिए तो मैं नेक्स्ट के लिए क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट के लिए पेस्ट कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट के लिए ये मैंने 5 टाइम्स मैंने इसको कर दिया। ये मेरा 1 2 3 4, ये तो चाहिए नहीं मुझको। आप देखिए 101 102, ये बाकी सब में रोहन आ रहा है। क्यों रोहन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने केवल 00 पास किया है। यही चीज क्योंकि ये देखिए ये 1 पे 102 है, पर नेम के 1 को मैंने अभी कॉल ही नहीं किया है। चलिए कॉल कर देते हैं, 1 2 3 4। उसी तरह से ये 0 1
2 3 4। इसको मैं रन कर रहा हूं, ये देखिए एज इट इज आ गए ना। ओके, ये तो हो गया थोड़ा टाइम वेस्ट की बात। अब हम इसी को फॉर लूप से करते हैं। इस कोड को देखिए बहुत आराम से, ये आपने देखा भी होगा। फॉर लूप क्या करता है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, इसकी केवल इतने हिस्से की। ये मैंने किया, कॉपी, पेस्ट नहीं होगा ऐसे, तो हम इसमें पेस्ट कर देंगे। इसमें क्या है, फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इतना ये कॉपी किया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर, अब पेस्ट हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये x है, जो ये जो आ रहा है रेंज, ये सीक्वेंस क्रिएट कर देता है 0 से लेकर माय मार्क्स के लेंथ तक। लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 8, सॉरी लेंथ होगी इसकी 4, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने इसकी लेंथ होगी। लेंथ कितनी हो गई, 5। तो क्या करेगा, x के लिए वैल्यूज ये जनरेट करेगा, यानी कि x स्टार्टिंग में 0 होगा, लेकिन कहां तक चलना है इसको, x की वैल्यू 5 तक आ जानी चाहिए। तो x स्टार्टिंग में 0 चला, फिर x 1 हुआ, फिर x 2 हुआ, फिर x 3 हुआ। इट मीन्स कि x की वैल्यू के लिए इसने एक क्या कर दिया, एक लिस्ट तैयार कर दी जो 0 से लेकर 5 तक चल रहा है। 0 1 2 3 4 5। और यही चीज ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप के अंदर। जब x की वैल्यू 0 हुई तब एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए यही चीज यहां पे करते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 हुई, अगर मैंने यहाँ पे रोल नंबर इसके लिए x पास करा दिया है, यानी कि जब x की स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 होगी तो 0th वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस चलेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए 1, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, यानी कि जहां जहां इंडेक्स नेम के साथ में x दे दूंगा वहां का वो पूरा पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखिए बीच में गैप ही नहीं है, केवल मैं एक इंडिविजुअल पूरा पूरा कर लेता हूं, अब समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए, तो इस तरह से हम फॉर लूप का भी यूज करते हैं। इंडिविजुअल पूरा पूरा आप उठा सकते हैं डेटा, इंडिविजुअल कॉलम। बाय स्टूडेंट्स।